Good evening, student. And today we are going to discuss the some numerical on the information entropy. And the first numerical here, the first numerical is that consider a consider a discrete memoryless source with alphabet a is equal to s0, s1, s2 with respective probabilities p0 is equal to 1 by 4, p1 is equal to 154, and p2 is equal to and p2 p2 is equal to 1 by 2. Then here the numerical what we have to find the entropy of the source. Okay, as we know, the formula of the entropy, uh, the formula of entropy, that is H is equal to summation k is equal to 1 to m, uh, k is equal to 1 to m pk log 1 upon pk to the base 2. This is the formula. Now we have three masses, like s1, s0, s2. Then the value of m is equal to 3. Now simply place the value one by one here, and after calculating, and we get the answer. Now we have three masses, probabilities 1 by 4, p2 1 by 4, and p3 1 by 2. Then h is equal to p1 log 1 upon p1 to the base 2 plus p2 log 1 upon p2 to the base 2, p3 log 1 upon p3 to the base 2 is equal to, simply place the value of the p1, p2 and p3. If we place the value of the p1, we get 1 upon 4 log और p1 जब हम 1 by 4 प्लेस करेंगे तो आपका बाई तो वो 4 ऊपर आ जाएगा, log 4 to the base 2. Again next plus 1 by 4 log 4 to the base 2 by placing the value of p2 is equal to 1 by 4, and then 1 by 2 log 2 to the base 2. Now after that 1 by 4 log 4 to the base 2, 1 by 4 log 4 to the base 2, there are the two value, simply it can write as the 2 into 1 by 4 log 4 to the base 2 plus 1 upon 2. As we know the property of the log, that is, if we find the log of any number with the same base, then its value is equal to 1. Now log 2 to the base 2 is equal to 1, and after that here also the first term we write 4 in the form of the 2 square, and 2 can be taken out before the log. This is the property of log. log the property है कि अगर आपका log a to the power b है, then b can be taken out from the log, simply b log a. So here also 2 can be taken out and from the log, and then the first term will be become 1 upon 2, 2 आपका बाहर आ गया, और log 2 to the base 2, इसकी वैल्यू आपकी हो गई 1. ओवरऑल 1 upon 2 into 2 plus 1 upon 2, और 2 cancel out, and 1 plus 1 upon 2 is equal to 3 upon 2, and that is 1.5 bits per message. This is the answer. तो ये एक आपका एंट्रोपी का न्यूमेरिकल था, जिसमें आपने ये फाइंड किया कि किस तरीके से सिंपली हियर वी आर यूजिंग द फार्मूला ऑफ एंट्रोपी एंड सिंपली प्लेस द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी, एंड वी गेट द एंट्रोपी. यहाँ पर आपको एंट्रोपी की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 1.5 बिट्स पर मैसेज. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, okay, like that. Next numerical is this one. So that if there are m number of equally likely masses, then entropy of source is log m to the base 2. Okay,
तो ये आपको शो करना है m नंबर ऑफ इक्वली लाइकली मैसेज। m नंबर ऑफ इक्वली लाइकली मैसेज मीन्स देयर आर द m symbol like p1 p2 p3 and up to pm, or like m symbols, and the probability can be rendered by p1 p2 p3 and pm, and all the probability are equiprobable, means all these probability are equiprobable having the same probability. जस्ट लाइक इफ़ यू टेक द एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके दो सिंबल हैं, दैट इज़ टू सिंबल हैं, अगर उनको इक्वली प्रोबेबिलिटी आपको डिवाइड करने तब क्या करते हैं, आप 1/2 करते हैं। 1/2 इज़ इक्वल टू 1, मीन्स ओवरऑल इस हम ये कहते हैं कि जितनी भी सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम आपका 1 के बराबर होना चाहिए। तो हियर ऑल्सो, तो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगी, अगर आपके m अगर सिंबल्स हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/m, 1/m, 1/m and 1/m, means all the m symbol having the same probability and which can be represented by the 1/m। ये आपका फार्मूला हो गया। अभी आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को डिसाइड किया किस तरीके से आपके m सिंबल थे, और m सिंबल हैविंग द सेम प्रोबेबिलिटी, हैविंग द सेम प्रोबेबिलिटी दैट इज़ 1/m। तो हम तो कैसे राइट करेंगे, वी नो दैट फॉर m नंबर ऑफ इक्वली लाइकली मैसेज प्रोबेबिलिटी इज p इज इक्वल टू 1/m। तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो आपकी 1/m के बराबर हो जाएगी। तो अगर आपने ऐसा क्यों किया हुआ है, क्योंकि आपको ये पता है अगर आप 1/m को अगर आप यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट वैल्यू 1, मीन्स, और आपको ये पता है किसी भी सोर्स से आपके जितने भी सिंबल आपके जनरेट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम आपका 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आपके m सिंबल हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी अगर आपकी 1/m है, तो ओवरऑल यहाँ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, आपकी 1 के बराबर हो गई। नाउ दिस प्रोबेबिलिटी इज सेम फॉर ऑल m मैसेजेस। यहाँ से प्रोबेबिलिटी सारे मैसेजेस के लिए क्या हो गया, आपका वो सेम हो गया, दैट इज़ p1 इज इक्वल टू p2 इज इक्वल टू p3 इज इक्वल टू p4 इज इक्वल टू pm इज इक्वल टू 1/m। ओके, तो अभी हमने ये डिस्कस जाना कि आपके m नंबर ऑफ सिंबल्स हैं और उनकी जो प्रोबेबिलिटी आपकी है वो 1/m के बराबर हो गई। नाउ हाउ इट कैन बी प्रूफ, एज वी नो द फार्मूला h is equal to summation k is equal to 1 to m pk log 1/pk to the base 2। now simply there are the m term, यहाँ पर आपके m term है, तो सिंपली आप इसको वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। तो सिंपली मैं एक यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख के दिखा दे रहे हैं, बाकी आपकी सारी वैल्यूज आपकी सेम है। इफ़ यू टेक द फर्स्ट टर्म, अगर हम इस टर्म को प्लेस करें तो वैल्यू कैसे प्लेस करेंगे, 1/m log 1/m टू द बेस 2। तो क्या हो जाएगा, 1/m log m टू द बेस 2, ये आपका हो गया। मीन्स तो जो सिंगल जो टर्म्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/m log m टू द बेस 2। ओके, मीन्स अगर आप यहाँ पर हर सिंगल प्रोबेबिलिटीज़ को आप प्लेस करोगे तो ये आपकी वैल्यूज मिलेंगी आपकी। मीन्स तो आपको वैल्यू क्या मिल गया, हर सिंगल प्रोबेबिलिटी प्लेस करने के बाद आपको क्या मिल गया, 1/m log m टू द बेस 2। ठीक है, ये सिंगल प्रोबेबिलिटीज़ को प्लेस करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल गई, ये आपको एंट्रोपिक वैल्यू मिल गई। और हमें यहाँ ये पता है कि टोटल हमारे m सिंबल हैं, m सिंबल के लिए ये सेम टर्म कैन बी रिटन m टाइम। तो जब m टाइम इसको राइट करें सिंपली क्या होगा, ये हमारा m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब m से मल्टीप्लाई होगा सिंपली m कैंसिल आउट एंड वी गेट द एंट्रोपी log m टू द बेस 2, ये हो गया।
ओके, तो यहाँ पे वैसे ही आपको राइट किया गया, थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पे एक हमने एंट्रोपी को फाइंड किया हुआ है। ओके, तो सिंपली हमने वही किया हुआ है। यहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ फार्मूले को रखा, देन हमने यहाँ प्रोबेबिलिटीज़ के टर्म में ब्रेक किया, बिकॉज हियर इज़ द समेशन साइन। तो समेशन साइन को जब हम ब्रेक करेंगे इस तरीके से राइट करेंगे, लाइक इन द टर्म ऑफ द P1 P2 एंड अप टू द Pm। Now putting for probabilities from equation in above equation, here all the probabilities having 1 by m को प्लेस करेंगे, इसको हमने रखेंगे, सॉल्व करेंगे एंड वी गेट वैल्यू। एंड इन दिस इक्वेशन there are the m term having the same value, then overall this can be multiplied by m into a single term, and finally we get this one. Means finally here we get, in above equation there are the m number of term in the summation, hence after adding this term our equation become h equal to log m to the base 2. ये एक आपका न्यूमेरिकल था। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका है सेम उसी भी पेज है। if these are m equally likely and independent masses, then prove that amount of information carried by each message will be I is equal to n bit, where m is equal to 2 to the power n, where n is an integer। यहाँ पे ये आपको करना है कि यहाँ पे हमारे m मैसेज हैं, दे आर ऑल्सो द equally likely मैसेज। मीन्स इन प्रीवियस न्यूमेरिकल जस्ट लाइक हमने अब P1 P2 P3 एट Pm को हमने प्रोबेबिलिटी 1/m माना था, सिमिलरली हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ को हमने क्या मान लिया, हमने सेम मान लिया। m इक्वली लाइकली मैसेज है और सबकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो गई, 1/m हो गई। तो अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/m अगर है, उस केस में इंफॉर्मेशन कैरीड बाय ईच मैसेज के द्वारा कितना इंफॉर्मेशन वो कैरी करेगा, हमें उस चीज़ को फाइंड करना है। और वो इंफॉर्मेशन आपका n के बराबर होगा व्हेन m इज इक्वल टू 2 to the power n। अगर आपका ये है तो हमें ये चीज़ प्रूफ करना है। ओके, देन हाउ इट कैन बी प्रूव्ड। Okay, since all the messages are equally likely and independent, तो सेम यहाँ पे वही कंडीशन आपकी होगी, P1 P2 P3 और Pm, all the probabilities having value 1/m 1/m, इस तरीके सारे। तो सारे जो मैसेज की जो प्रॉबिलिटीज़ हो गई हमारी 1/m हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया कि दे आर इक्वल प्रोबेबल। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन का फार्मूला हमें पता ही है, ऑलरेडी आपका ये लिखा हुआ है। एज यू नो दिस इज द फार्मूला ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स आई के इज इक्वल टू log 1/p k to the base 2. This is the formula of the information of any message. Now simply place here pk is equal to 1/m, then ik is equal to log 2 1/n। ये हो गया आपका, हमने यहाँ वैल्यू प्लेस कर दिया। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट लाइन, next line will be is equal to log m ऊपर चला जाएगा to the base 2, and also given और जो m की वैल्यू गिवन दी हुई है वो आपकी 2 to the power n है, log 2 to the power n to the
base 2. Now again use the property of log a to the power b. Here n can be taken out from the log इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आपकी n थी ये आपको हो जाएगा n log 2 to the base 2 and this value is equal to 1. Simply after solving we get value is equal to n. तो आपने ये ऑब्जर्व किया किस तरीके से इस न्यूमेरिकल में आपने जो दिखाया है कि हमारी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन की जो वैल्यू आई है वो इंफॉर्मेशन की वैल्यू हमारी क्या हो गई, वो इंफॉर्मेशन हमारा n के बराबर हो गया. नाउ हियर i इज इक्वल टू n के बराबर. दिस इज़ योर न्यूमेरिकल. ओके, तो सिंपली बस आपको न्यूमेरिकल को समझना है क्या कहना चाह रहा, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी डिसाइड करना है. देन अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल वहाँ क्या पूछ रहा है, एंट्रोपी पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट for a discrete memoryless source there are three symbol with probabilities p1 is equal to alpha and p2 is equal to p3 and determine the entropy of the source and sketch its variation for different value of alpha. तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पिछले सेमेस्टरों में ये आपका पूछ चुका है. इस न्यूमेरिकल में क्या है कि आपका एक प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका p1 की वैल्यू आपकी अल्फ़ा गिवन दी हुई है और आपका p2 और p3 आपका ये बराबर दिया हुआ है. ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी सोर्स से जो हमारे सिंबल जनरेट हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो आपका 1 के बराबर होता है. मतलब p1 प्लस p2 प्लस p3 इज इक्वल टू 1. ओके, एंड ऑलरेडी जो p1 की वैल्यू आपकी अल्फ़ा दी हुई है, p1 की वैल्यू क्या दी आपकी अल्फ़ा दी. अल्फ़ा प्लेस करिएगा तो अल्फ़ा प्लेस करने के बाद क्या होगा आपका, इफ़ यू प्लेस अल्फ़ा प्लस और ये p2 और p3 हमारी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं. इसको हम 2p2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 1 हो गया. ठीक है, एंड आफ्टर दैट आफ्टर सॉल्विंग आफ्टर डूइंग सम कैलकुलेशन तो आप उधर अल्फ़ा को आप राइट हैंड साइड ले जाइए तो क्या होगा 2p2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा. देन p2 इज इक्वल टू p3 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2. ये आपका हो गया. ठीक है, तो आपने p2 और p3 को फाइंड कर दिया. तो बाई सिंपल कैलकुलेशन एंड ऑल्सो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटीज वी गेट 3 probability in term of the alpha, 3 probability in term of alpha, just like p1 is equal to alpha and p2 is equal to 1 minus alpha by 2 and p3 is equal to 1 minus alpha by 2. आपको एक 3 प्रोबेबिलिटी मिल गया इन टर्म ऑफ द अल्फ़ा. नाउ सिंपली यूजिंग द फार्मूला ऑफ द एंट्रोपी, एज यू नो एंट्रोपी कैन बी गिवन एज h इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to 3 pk log 1 upon pk to the base 2. दिस इज़ द फार्मूला. तो सिंपली इफ़ यू ब्रेक द, अगर समेशन ब्रेक करेंगे तो आपका फार्मूला कैसा हो जाएगा, इफ़ यू ब्रेक द समेशन
तो फार्मूला कैसा होगा आपका, इज इक्वल टू P1 log 1 upon P1 plus P2 log 1 upon P2 and one more term simply like that one more term plus P3 log 1 upon P3। जब मैं सारे वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया, हमने यहाँ पे लॉग के बेस को डिफाइन नहीं किया, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ अगर आपका लॉग का बेस अगर ना हो तो हमें ये पता है कि वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आपकी 2 के बराबर होती है। बिकॉज इन डिजिटल बाइनरी अगर हम डिजिटल बात करें या बाइनरी बात करें तो इसकी वैल्यू आपको 0-1 के फॉर्म में हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 0-1 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, वो 2 के बराबर रहेगी। Now place all the values P1 is equal to alpha and P2 and P3 is equal to 1 minus alpha upon 2 and what will be the value, हमने सिंपली यहाँ प्लेस किया हुआ है and after placing all the values आपको दिख रहा है। अगर हम इस लाइन के बारे में बात करें तो आपका P1 अल्फ़ा था, अल्फ़ा log 1 upon अल्फ़ा टू द बेस 2। P2 आपका था 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 लॉग आपका 2 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा टू द बेस 2 प्लस P3 भी सेम P2 के बराबर था 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 लॉग 2 अपॉन अल्फ़ा टू द बेस 2। हियर these two term here these term means this term and this term are same, simply it can be written like 2 टाइम। तो 2 टाइम जब इसको हम प्लेस करेंगे देन वी गेट दिस लाइन इज इक्वल टू अल्फ़ा log 1 अपॉन अल्फ़ा टू द बेस 2 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा वो आपका वो 2 टाइम होगा तो कैंसिल है, 1 माइनस अल्फ़ा log 2 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा टू द बेस 2। तो ये आपको फाइनली एक इक्वेशन मिल गया, जो चीज़ें दिख रहा है ये आपका एंट्रोपी का फार्मूला हो गया। और ये जैसे ये एक एंट्रोपी का फार्मूला इन टर्म ऑफ द अल्फ़ा, तो ये तो एंट्रोपी का इक्वेशन निकल के आ गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि आपका यहाँ पे ये क्या रिलेशन होगा, क्या ग्राफ होगा, हाउ द एंट्रोपी कैन चेंजेस विद द वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा, हमें ये देखना है। तो आप यहाँ पर अगर ऑब्ज़र्व करें चीज़ें थोड़ा सा अगर आप ऑब्ज़र्व करें यहाँ पे तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ चीज़ों को। अगर आप ये ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पे एक टेबल बनाया गया और टेबल एक तरफ अल्फ़ा का लिखा गया, एक तरफ आपका एच लिखा गया है। ठीक है, हियर वी टेक द वैल्यू अल्फ़ा, एज वी नो अल्फ़ा आपका क्या है, अल्फ़ा आपके जो है वो प्रोबेबिलिटी का टर्म है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 से लेके 1 तक रेंज करता है, मीन्स ऑलवेज वैल्यू लाई बिटवीन द 0 to 1, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो आपको दिख रहा है, आप सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, लाइक मिनिमम वैल्यू 0, then 0.2, then 0.3, then 0.4, then 0.5, then 0.6, then 0.8, then 1.0. Now putting the value of alpha in h, अगर हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ को हम प्लेस करें इस h में, then we get the value in term of the entropy। तो आपको जो यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है, ये जो आपको इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है
like that. ये जो आपको इक्वेशन ये जो दिख रहा है, इस इक्वेशन में जो अल्फ़ा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं आप वन बाय वन प्लेस करें एंड बाय यूजिंग कैलकुलेटर, एंड वी गेट फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 वी गेट H is equal to 1 means entropy. For 0.2 we get 1.52, for 0.3 we get 1.58, for 0.4 we get 1.57, and for 0.5 we get 1.5, and 0.6 we get 1.37, and 0.8 we get 0.92, and for 1 we get 0. This simply here we make graph between the alpha and entropy like that. तो आपने आप स्केल को डिफाइन कर लिया, ये स्केल अकॉर्डिंग टू आपने जो चीज़ें माना हुआ है, जैसे आपने स्केल को डिफाइन कर लिया लाइक ऑन द एक्स एक्सिस we take the value 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, and here entropy like simply scaling we get 0, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0. now place the value, ये जो वैल्यूज़ आपकी जो निकल के आई हैं ये वैल्यूज़ को सिंपली आप यहाँ पे प्लॉट करें लाइक दिख रहा है। अगर हम पहले ही वैल्यूज़ को लें मीन्स दिस वन, अगर हम ये वाली वैल्यू को लें तो देखो 0 पे आपको यहाँ पे 1 आपने प्लॉट किया हुआ है, फिर 0.2 पे 1.52, तो ये 0.2 पे आपको मिल रहा है 1.52 नियर अबाउट स्केल किया गया। आफ्टर दैट 0.4 पे 1.57, 0.4 पे 1.57 हो गया, देन 0.5 पे 1.5 के नियर अबाउट है, देन 0.6 1.37, then 0.8 पे 0.92, and for the value of 1 and its value is equal to 0. तो दिस इज़ योर कंप्लीट न्यूमेरिकल जो यहाँ बताया गया किस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया हुआ है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, एंड देन आफ्टर गेटिंग ये सिंपली आपने यहाँ पे इसको पहले आपने सारी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड किया. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ इन the formula of entropy. Now make a graph between the alpha and entropy and means table, and finally sketch the H with respect to the alpha, and we get the graph between the H and A. Now this is a very important numerical, already 82 क्वेश्चन में आ चुके हैं. Okay, this is all about today topic. Okay, thank you.